Yes, good morning everyone. Good morning. Welcome back to our class. In our previous class, we have done the half part of this important questions. So remaining part we will cover in this class. Okay. I hope you will understand and I hope that you have watched our previous class. So okay, let's start our class. Yes. Rewrite the sentences in the negative and the interrogative forms. We have done this both questions in our previous class. So let's start again and we will do again. Okay. These questions from your chapter number 14, past tense. Okay. Everybody know about the past tense? That work you have already done. जो ऑलरेडी डन, जो काम हो चुका है, मतलब जो आपने प्रीवियस टाइम में किया है, इट मीन्स वी हैव रिकॉर्डेड, वी हैड रिकॉर्डेड ऑलरेडी हाफ पार्ट ऑफ दिस वीडियो. तो हैड रिकॉर्डेड क्या हुआ आपका? पास्ट, पास्ट परफेक्ट. तो जो काम हमारा हमारा बीते हुए समय में हो गया है, दैट इज कॉल्ड पास्ट टेंस. ओके. इन दिस क्वेश्चन व्हाट यू हैव टू डू, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में चेंज करना है. दीज आर योर अफर्मेटिव सेंटेंसेस and you have to change them into negative and interrogative. First of all, you should know about the helping verb and the sentence forming, कि किस तरह से sentence को form करना है. So first, the man enjoyed the party. How would you know कि ये past tense है? यहाँ पर आपको सबसे पहले देखना है, this is your second form. वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड. जहां पर आपको मिले सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इट मींस ये आपका कौन सा टेंस हो गया? सिंपल पास्ट. कौन सा टेंस है ये? ओके, दिस इज योर पास्ट टेंस. So we have to change into negative and interrogative. So you should know about the formula of negative and interrogative. So first of all, you will write the formula of negative. So here we will write, first of all, in negative you will write subject plus helping verb. Helping verb, which helping verb we use in simple past tense? Yes, did. कौन सी यूज करते हैं? Did. Okay. Then verb first form. Sorry. नेगेटिव है तो आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब यू हैव टू पुट नोट. नेगेटिव में थर्ड नंबर पे नोट लगाना है. आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब नोट लगाएंगे. उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट. याद रखना है आपको कि इन अफर्मेटिव वी यूज वर्ब की सेकंड फॉर्म, बट इन नेगेटिव वी यूज द फर्स्ट फॉर्म. रूट फॉर्म लिखी जाती है. यहाँ पर हम डिड नॉट इंजॉय नहीं कर सकते, डिड नॉट इंजॉय होगा. ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर डिड का यूज किया है, इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन सी हो जाएगी? फर्स्ट. वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड and you have the formulas of each and every tenses. So just I am doing here. What is our subject here? The man. Okay. Then first subject हो गया, then helping verb did. Then after not. Then your verb enjoy. What? The party. The man did not enjoy the party. इस तरह से नेगेटिव फॉर्म होगा. नाउ इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेटिव कैसे करेंगे? इन इंटेरोगेटिव जहां क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यू आस्क क्वेश्चन. So we start these sentences first with helping verb. Helping verb से start करते हैं. Look at formula here. First of all, your helping verb. हेल्पिंग वर्ब का आपको यहाँ पर जो लेटर है वो कैपिटल रखना है. मीन्स डिड आपका कैपिटल में हो जाएगा. ओके. देन सब्जेक्ट
इफ देयर एनी नेमिंग वर्ड, कोई नेम है किसी का, तो आप उसे कैपिटल से लिखेंगे. इफ देयर इज प्रोनाउन, so you have no need to write in capital letter, you will just make a small letter. So you will their subject, then your verb की first form, then object, then question mark. Okay, so who will solve this question? Yes, Janvi, speak aloud. Negative? Yes. In, oh, rewrite this sentence into interrogative. Yes. Did the man enjoy the party? Last question mark. Like this. Okay. First of all, you will write, did the man enjoy the party? This is your simple past tense. Now next, they were sleeping. Which tense is this? They were sleeping. Who will tell me? Past continuous. कौन सा है? यहाँ पर आपको देखना है, वर है, वॉज वर है तो पास्ट में ही होता है वॉज वर, और स्लीपिंग है मतलब वर्ब के साथ आईएनजी है, तो जहाँ वर्ब के साथ आईएनजी है दैट मीन्स दिस इज योर कंटिन्यूअस टेंस. ओके, so we will do this. First of all, you will write the formula of this tense. So in affirmative ये बना हुआ है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. हमें नेगेटिव में जाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट द फॉर्मूला. तो फर्स्ट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब. हेल्पिंग वर्ब जो भी यहाँ पर है आपकी वॉज वर्ब ही होगी बिकॉज दिस इज योर कंटिन्यूअस टेंस. ओके, देन योर नोट आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब नोट, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट. ओके, दिस इज सिंपल पास्ट और दिस इज पास्ट कंटिन्यूअस. कौन सा टेंस है ये आपका? So change in this sentence. They, क्या आएगा अब? They were not sleeping. They were not sleeping. Finish. Okay. Now next, make interrogative. Okay. How to make interrogative? कौन बनाएगा? गुंजन. Yes, make this interrogative. First you, हाँ, were they? Very good, Gunjan. Were they sleeping? As I have already told you कि हाँ जब हम interrogative बनाएंगे तो starting किससे करेंगे? Helping verb से. तो helping verb क्या है हमारी? Were. Subject, अब subject का T small हो गया क्योंकि I told you कि यहाँ W capital होगा और T small होगा. तो were they sleeping? You are just asking the question. Okay. Now next. My mother had cooked dinner. यहाँ पर आपको देखना है which had cooked. क्या है? Has, have और had कौन से टेंस की पहचान है? परफेक्ट टेंस. कौन से टेंस की है? There is has, have, then this is in present. Now here had. तो कौन सा टेंस हो गया ये? और will have होगा तो फ्यूचर. प्रेजेंट फ्यूचर होता है ना will have. तो ठीक है, यहाँ पर हमें करना है, हमें देखना है had cooked. कौन सा है? पास्ट परफेक्ट. पास्ट परफेक्ट में क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, सॉरी what is happening in this? Subject,
ओके। हेल्पिंग वर्ब होती है आपकी had। आफ्टर दैट व्हाट वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड, देन ऑब्जेक्ट। दिस इज योर पास्ट परफेक्ट। ओके, इन दिस टेंस वी हैव टू मेक द नेगेटिव ऑफ दिस सेंटेंस। तो नेगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल राइट, बोला करो ना कि मैम यू आर स्पीकिंग रॉन्ग। ओके, सो सब्जेक्ट, व्हाट इज सब्जेक्ट हियर? माय मदर। यस अनुजा, मेक दिस सेंटेंस इन नेगेटिव। माय मदर had not कुक आएगा या कुकड आएगा? कुकड आएगा, क्योंकि याद रखना है परफेक्ट टेंस ऑलवेज कैरी वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, ये हमेशा अपने साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है। तो यहाँ हो जाएगा हैड नॉट कुक्ड व्हाट डिनर। Yes, sit down. Now we will make interrogative. इंटेरोगेटिव में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट वो क्या आ जाएगा अपना? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। मनस स्पीक दिस सेंटेंस। वेरी गुड मनस। हैड माय मदर cooked dinner? Question mark. Okay. First of all, helping verb, then subject, then verb की third form, then object, then question mark. This, my father slept soundly. Arohi, which tense is this, beta? Look at here, this is. इस वर्ड को देखकर पहचानो कौन सा टेंस है ये? पास्ट तो है, पर कौन सा पास्ट? सिंपल पास्ट। वर्ब की सेकंड फॉर्म है। आपको यहाँ देखना है कि कौन सी वर्ब है। वर्ब को देखकर ही हम पहचानते हैं। यहाँ पर स्लैप्ड है, स्लैप्ड से पहले ना तो कोई वॉज वर्ब है ना हैज हैव है। तो यहाँ आप समझ जाइए कि यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, डायरेक्ट वर्ब लिखा हुआ है अफर्मेटिव में। तो दैट मीन्स योर सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? आई टोल्ड यू इन द फर्स्ट सेंटेंस। डेड क्या होती है? यस, तो अब इसका नेगेटिव बताओ। स्लैप नहीं, स्लिप। स्लैप तो सेकंड फॉर्म है और डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी तो स्लिप। ओके, ये याद रखना है। ये अफर्मेटिव है, दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग हियर स्लैप सेकंड फॉर्म। ओके, लेकिन फर्स्ट जब हम इसको नेगेटिव में करेंगे तो वहां डिड नॉट स्लिप हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। माय फादर स्लिप soundly. Okay, Guneet, stand up. Sit down, beta. Make interrogative of this sentence. Very good. Sit down. Date से बनेगा, helping verb से बनेगा। My father sound. Okay, clear this topic. Do you have any problem in this? Say yes or no. Okay, next question.
फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल्स। आर्टिकल्स आप सभी को आता है? डू यू हैव एनी प्रॉब्लम इन आर्टिकल्स? I had explained already so many times where we use where we use an and where we use the. ठीक है, आर्टिकल्स में क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो, यू हैव टू चेक द साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड एंड वोवेल साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ कौन सा आर्टिकल आता है? अ, और वोवेल साउंड्स के साथ एन, और स्पेसिफिक थिंग्स के साथ द। ठीक है, यहाँ आपको देखना है, अगर कॉन्सोनेंट साउंड के साथ अ, एंड, और कोई भी स्पेसिफिक थिंग्स है या हॉली बुक्स है और रिलीजन है, रिलीजियस बुक है, न्यूज़पेपर नेम है, हिल्स, माउंटेन्स इनके नेम है, या फिर माउंट रेंजेस के नेम है, किसी हिस्टोरिकल प्लेस का नेम है, तो क्या लिखेंगे हम? दो। किसी चीज से आप पहले से इंट्रोड्यूस हैं तो भी हम द लगेंगे। किसी की स्पेसिफिक क्वालिटीज बतानी है, सन मून अर्थ से पहले, रिवर्स नेम से पहले द लगेगा, आपके ऑर्डिनल नंबर से पहले, सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या लगता है? दो। ठीक है, ये सब आपको पता है। आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ आ, वोवल साउंड्स के साथ एन लगता है। बट सम यहाँ एक और चीज आपको बतानी है मुझे, द एंड, ये किसी जगह पे इसको द कहा जाता है, कई जगह पे इसका प्रोनाउंसिएशन होता है दी। क्या होता है? अब आपको कैसे पता चलेगा कहाँ पर आपको दी करना है, कहाँ पर आपको द करना है? जब जब आपका यहाँ पर जो आपका ऑब्जेक्ट है, मतलब जब आपको ये पुट करना है, तो यहाँ पर भी कॉन्सोनेंट और वोवल साउंड देखना है। जब आपका कॉन्सोनेंट होता है, नाउन क्या है आपका? कॉन्सोनेंट, तो हम इसको बोलते हैं दा। क्या बोलते हैं? और जब आपका वोवल हो, तो यहाँ हम इसको बोलते हैं दी। कैसे पता चलेगा? थिंक, यहाँ पर आप क्या लिख रहे हो? डियर इज अ टिमिड एनिमल, तो डियर की क्वालिटी बता रहे हैं, तो हमें यहाँ पर दी और द में से यूज करना है। तो डी क्या है आपका? कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर जो हम फिल करने वाले हैं द, तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? द। अब मैंने यहाँ वन मोर सेंटेंस यू विल सी हियर, नाउ यू आर टेलिंग द क्वालिटी ऑफ अम्ब्रेला। अब हम जब किसी की स्पेसिफिक क्वालिटी करके बताते हैं तो हम वहां पर द और दी का यूज करते हैं। अब अम्ब्रेला का प्रोनाउंसिएशन क्या है? वॉवल, तो यहाँ पर दा नहीं लिखेंगे, इसको क्या बोलेंगे हम? दी। दी अम्ब्रेला। समझ आ गया? ठीक है, ये तो एक इम्पॉर्टेंट बात थी जो मैंने आपको डिफरेंस बताया था कि वेयर यू विल यू बी स्पीक द एंड वेयर यू विल स्पीक दी। नाउ द एक्सरसाइज, गीता, व्हाट इज गीता हियर? इज अ सैक्रेड बुक, बुक का नेम है किसी होली बुक का नेम है ऑफ द हिंदूज, हिंदूज की क्या है वो? होली बुक है, तो होली बुक से पहले क्या लगाएंगे? ओके, द। याद रखना है जब भी स्टार्टिंग में आर्टिकल्स भरेंगे तो उसका लेटर हमेशा कैपिटल रखना है, स्मॉल लेटर से नहीं।
If you are filling in the mid, so you will use small letters. But when we are starting the sentence, so just we will make the capital letter. As you know कि जब भी कोई sentence हम new start करते हैं या starting करते हैं तो कुछ भी हो, we have to make the capital letter. Okay? ये नहीं कि कहीं बीच में जब नेमिंग वर्ड्स जो प्रॉपर नाउन होता है बस एक उसी को कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, चाहे वो मिड में हो, लास्ट में हो, स्टार्टिंग में हो. प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, उसके बाद आपको स्मॉल और कैपिटल का ध्यान रखना होता है. अब है डॉग इज अ फेथफुल एनिमल. डॉग की क्वालिटी है, डॉग की क्वालिटी बता रहे हैं कि वो एक लॉयल एनिमल है, फेथफुल एनिमल है. तो क्या आएगा यहाँ पर? द. अब यहाँ प्रोनाउंसिएशन दी कर सकते हैं क्या हम? बिकॉज बोथ आर कॉन्सोनेंट. आई बोट कार फॉर यू. मैं तुम्हारे लिए कार लाया हूँ. आकार, एक कार लेकर आया हूँ. द कार तो नहीं बोलेंगे. अच्छा, गिव मी 1 रुपी कॉइन. आई एन. एन किसने बोला? इशिका एन आएगा क्या? वाई आएगा ना, क्योंकि इसका साउंड देखिए आप, क्या आ रहा है? वो कौन सा साउंड है ये? बी. बी कौन सा आता है? कॉन्सोनेंट होता है ना. So right here, now my aim is to become an engineer. Yes. Got it this? Identify the pronouns in the given sentences. हमें यहाँ पर ये अंडरलाइन वर्ड्स है, इनको देखकर बताना है ये प्रोनाउंस का कौन सा काइंड है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेल मी द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन. हु विल टेल मी? कौन बताएगा प्रोनाउन की डेफिनेशन? यस अग्रिमा. Yes. Pronoun is a word that is used in place of noun. जो नाउन की जगह पर, नेमिंग वर्ड्स की जगह पर यूज किए जाते हैं उन्हें प्रोनाउंस कहा जाता है. लाइक ही, शी, इट, दे, माई, व्हाट, हिज, हर, हिम. ये सब क्या हैं आपके? प्रोनाउंस. हाउ मेनी काइंड्स आर देयर इन योर बुक? कैन यू टेल मी कितने काइंड से हैं प्रोनाउन के आपके बुक में? 10 kinds are there. कितने kinds हैं? Do you know about the kinds of pronoun? How many times I explained? Personal pronouns, possessive pronouns, demonstrative pronouns, interrogative pronouns, relative pronouns, reflexive pronouns, emphatic pronouns, distributive pronouns, indefinite pronouns, हाँ, reciprocal. So some are most important like personal pronoun, interrogative pronoun, demonstrative pronoun, relative pronoun, emphatic and reflexive pronoun, possessive pronoun. ये तो थोड़े ज्यादा important है, ज्यादा आते हैं. Distributive, reciprocal and indefinite ये भी important होते हैं. तो ये सारे मैंने आपको अच्छे से explain किए हुए हैं and I have explained many times. So first of all, you should know about the personal pronoun. Personal pronoun is based upon the persons. Persons होते हैं ना personal pronoun में. How many kinds of person are there? 3 persons होते हैं. कितने persons होते हैं? First person, second person, third person. First person कौन सा होता है? I, we, जो speaker होता है, बोलने वाला होता है. First person, I, we. Second person? You, जो सुनने वाला होता है, लिसनर, you. थर्ड पर्सन? ही, शी, इट, दे या किसी भी थर्ड पर्सन का नेम, जो क्या हो, जिसके बारे में बात की जाती है, टॉकिंग अबाउट दैम. ठीक है. अब यहाँ पर आपको देखना है, शी इज माई बेस्ट फ्रेंड. शी कौन सा है? पर्सनल है, अभी बताया है मैंने आपको. ही, शी, इट, दे ये जो भी हैं सारे कौन से होते हैं हमारे? पर्सनल. थर्ड पर्सन है ना ये, तो पर्सनल प्रोनाउन हो गया.
तो यहाँ पर इसका आंसर आपको करना है पर्सनल। फिर है व्हाट इज योर रोल नंबर। इंटेरोगेटिव कैसे पता चला? फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन मार्क इज हियर एंड देन इफ सेंटेंस इज स्टार्टिंग विद WHO वर्ड, तो कौन सा है ये? इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको देखना है इट विल स्टार्ट विद WHO वर्ड एंड लास्ट एंड विद क्वेश्चन मार्क। जहां क्वेश्चन मार्क है इट मींस ये सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव है। जो भी WHO वर्ड होते हैं लाइक व्हाट, हु, व्हिच, हुज, whom, ये सब क्या है आपके इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। नाउ नेक्स्ट दैट इज एन एरोप्लेन। दैट कौन सा है? These those are called your demonstrative pronoun. ये indicate करते हैं this and that is used for singular noun and these and those used for plural. So this that is an aeroplane. तो that आपका हो गया demonstrative. Next, the girl who came late was punished. रिलेटिव। देखो आपको याद रखना है जो भी WHO वर्ड होते हैं आपके, या दैट होता है, इफ होता है, दैट होता है, दैट, तो इनसे जब एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से कनेक्ट करने के लिए इन दोनों सब वर्ड्स को यूज किया जाता है। ओके, हियर वी आर यूजिंग हु फॉर द गर्ल। हु किसके लिए यूज किया जा रहा है? द गर्ल के लिए यूज किया जा रहा है। तो यहाँ आप इंटेरोगेटिव मत कर देना कि अभी तो मैम ने WHO वर्ड को इंटेरोगेटिव बनाया था। इंटेरोगेटिव वो तभी होगा जब लास्ट में आपके क्वेश्चन मार्क होगा। देयर इज नो क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क नहीं है, फुल स्टॉप है, तो इस मीन्स ये जो वर्ड्स है यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहे हैं, एज इन कंजक्शन कर रहे हैं, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से कनेक्ट कर रहा है ना, कि यहाँ पर इसने इसको कनेक्ट किया है। तो यहाँ पर ये बता रहा है गर्ल के बारे में, किस गर्ल को पनिश किया गया? उस गर्ल को पनिश किया गया है जो लेट आई है। ठीक है, तो कौन सा प्रोनाउन हो गया ये आपका? रिलेटिव। Now Ram hit himself when he fell from the camel. रिफ्लेक्सिव। देखो यहाँ रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक दोनों जो प्रोनाउन होते हैं, आई एम राइटिंग द आंसर हियर फर्स्ट। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? वी एड सेल्फ ऑन सेल्फ विद योर प्रोनाउंस। प्रोनाउंस के साथ में हम क्या लगाते हैं? सेल्फ या सेल्फ। ठीक है, ये दोनों वर्ड्स लगाए जाते हैं। जब आप किसी सिंगुलर के लिए यूज करेंगे तो सेल्फ, और प्लूरल के लिए सेल्फ। अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हम इसको पुट करते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट अपने बारे में ही बात करता है। इसके अंदर जो सब्जेक्ट होता है वो कहता है ये काम मेरे द्वारा ही हुआ है। फिर हमें देखना है पर्सन कौन सा है। आई है तो माई सेल्फ, यू है तो योर सेल्फ, और वी है तो आर सेल्फ, दे है तो themselves, इट है तो itself, he है तो himself, she है तो herself। ऐसे आपको सेंटेंस पढ़ के बताना। अब यहाँ पर देखना, if your this pronoun come after the subject, just after the subject, तो वो होता है आपका emphatic pronoun। अगर जस्ट सब्जेक्ट के बाद ही आता है ना तो वो होता है emphatic। बट व्हेन दिस प्रोनाउन कम आफ्टर द वर्ब, जब वर्ब के बाद आता है तो वो होता है रिफ्लेक्सिव। ये डिफरेंस है इन दोनों में। अगर जस्ट राम हिमसेल्फ आता है तो एम्फेटिक है, बट राम हिट हिमसेल्फ, यहाँ पहले वर्ब है, तो वर्ब के बाद अगर आपका ये आ रहा है तो हमें रिफ्लेक्सिव करना है।
अंडरस्टूड दिस? नेक्स्ट है गिव द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ दिस एडजेक्टिव. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. हमें यहाँ पर बताना है इसका क्या क्या बताना है. सुपर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. कंपैरेटिव डिग्री में क्या ऐड करते हैं हम? ER. और सुपरलेटिव में EST. ओके. कंपैरेटिव डिग्री में ER लगेगा और सुपरलेटिव डिग्री में EST लगेगा. बट कभी कभी हमें, अभी मैं अपन बनाते हैं तब एक्सप्लेन करेंगे. अर्ली है, अर्ली में लास्ट में क्या है पहले तो ये बताओ. और वाई से पहले क्या है? कॉन्सोनेंट. एल इज. जब वाई से पहले कॉन्सोनेंट होगा तो वाई किस में कन्वर्ट करोगे? आई में. वाई को वाई नहीं रखना, आई में कन्वर्ट करेंगे. ओके. तो इसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या बन जाएगी? क्लियर. क्या हो गई? ER पुट करना है ना. और यहाँ पर क्या हो जाएगा? अर्लीएस्ट. अंडरस्टूड दिस? y को i में कन्वर्ट करेंगे, इसमें ER लग जाएगा, इसमें EST लग जाएगा. फिर है फैट. जब आपको देखना है लास्ट में आपका कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट से जस्ट पहले कुछ वर्ड्स में वोवल होता है, तो वो लास्ट वाला जो हमारा कॉन्सोनेंट है वो डबल हो जाएगा. तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? फैटर. डबल T कर देंगे और यहाँ पर फैटर. नेक्स्ट है एक्टिव. यहाँ पर देखिए एक्टिव. दो वोवल साउंड आ रहे हैं. देयर आर 2 वोवल साउंड. अगर किसी वर्ड में मोर देन 2, 1 से ज्यादा हो, 1 से ज्यादा सिलेबल हो, यहाँ पर सिलेबल 2 है. कौन कौन से हैं? ए और आई और बी. तो इसको प्रोनाउंस करते हैं एक्टिव. एक्टिव. प्रोनाउंसिएशन में दो पार्ट कर पा रहे हो ना. एक्टिव. दो वोवल साउंड हो गए ना. तो जिसमें जितने वोवल साउंड होते हैं फिर उसके साथ हम EST या ER नहीं लगाते, वहां हम मोर और मोस्ट लगाते हैं. क्या लगाते हैं? ठीक है. तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? मोर एक्टिव. और यहाँ क्या हो जाएगा? मोस्ट एक्टिव. अब गुड और लिटिल. गुड का क्या होगा? गुडर और गुडेस्ट. कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो जिनकी स्पेलिंग कंप्लीट चेंज होती है. ओके. तो गुड का होता है बेटर, बेस्ट. कुछ बच्चे फिर भी रोंग कर देते हैं. लिटिल का क्या हो जाएगा? लेस्ट और यस. नेक्स्ट. select the right word and fill in the blanks. This is your based on homophones. होमोनिम्स बोल सकते हो, होमोफोन्स बोल सकते हो. क्या होता है? देयर आर वर्ड्स दे प्रोनाउंशिएट सेम बट देयर मीनिंग एंड स्पेलिंग्स आर डिफरेंट. ऐसे वर्ड जिनकी मीनिंग और स्पेलिंग्स डिफरेंट होते हैं पर प्रोनाउंसिएशन सेम होता है. ओके. तो यहाँ पर आप अकॉर्डिंग टू सेंटेंस देखेंगे और पहले तो आपको इन दोनों का मतलब पता होना चाहिए, उसके बाद आप इसको अंदर फिल कर सकते हो. सूरत इज एन. अभी सूरत एक सिटी है. इज एन कैसा टाउन है? इंडस्ट्रियल या इंडस्ट्रियल? कौन सा है? ओके. तो यहाँ पर ये वाला आ जाएगा. द विच माई अंकल वोर वॉज वेल स्टिच. अब यहाँ पर 2 सूट हैं. यहाँ पर पहनने वाले सूट की बात हो रही है ना. तो पहनने वाले सूट की कौन सी स्पेलिंग है? दिस. नाउ नेक्स्ट. प्लीज सम वाटर इन द जग. पोर और पोर. इस पोर का मतलब होता है होल और इस पोर का मतलब होता है डालना. तो किसी चीज के अंदर तो POUR. देयर आर मैनी ऑन द सरफेस ऑफ अ लीफ. ये सेम है, ये भी सेम है. अब यहाँ पर अब लीफ के अंदर तो क्या ही डालेंगे? पत्ती है पेड़ की, उस पर क्या डालेंगे? तो ये उसमें बता रहा है कि उस पर कुछ होल्स बने हुए हैं. तो यहाँ पर आ जाएगा होल.
stand up, Manas and Gunit. I said Manas and Gunit, stand up. A strong wind away my head. अब यहाँ पर कह रहा है एक तेज हवा आई और वो मेरी हेड को उड़ा ले गई. ठीक है, इस ब्लू का मतलब तो कलर का नेम है, तो ये तो आएगा ही नहीं, ब्लू आएगा, हवा में उड़ गई तो BLEW. आप देख सकते हो प्रोनाउंसिएशन सेम है बट मीनिंग और स्पेलिंग्स आर डिफरेंट. उसके बाद आपके आ जाएगा लास्ट, राइट एन एसे ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स. देयर विल बी सम टॉपिक्स जैसे माय फेवरेट सब्जेक्ट. अब माय फेवरेट सब्जेक्ट आता है तो आप कोई भी सब्जेक्ट, एनी सब्जेक्ट यू कैन चूज फॉर इट. यू हैव टू डिस्क्राइब अबाउट दिस सब्जेक्ट, हु इज टीचिंग यू, व्हाई डू यू लाइक द मोस्ट, एंड उस सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप और क्या करते हैं. ओके आपकी जो सेंटेंस मेकिंग है करेक्ट होनी चाहिए और इसको प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे, पास्ट टेंस में नहीं लिखेंगे. क्योंकि ये जब भी आप जनरल सेंटेंसेस लिखते हो, बेसिक सेंटेंसेस लिखते हो, तो बेसिक सेंटेंसेस जो आप हैबिचुअल हो वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है. वहां पास्ट और फ्यूचर दोनों यूज नहीं होता है. नेक्स्ट है हॉबीज. ये भी आपका किस में लिखा जाएगा, प्रेजेंट टेंस में लिखा जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में. और हॉबीज, यहाँ आपको अपनी हॉबी नहीं बताना है, उसके लिए तो होता माय फेवरेट हॉबी. यहाँ हॉबीज, हॉबीज की क्वालिटी बतानी है. मैंने बताया था ना हॉबीज का एस पैराग्राफ भी हैव डन, तो वहां पर बताना है कि हॉबीज की क्या इंपॉर्टेंस है और हॉबीज क्यों होनी चाहिए लाइफ में. ठीक है, अ मेमोरेबल डे इन माय लाइफ. अब इसको आपको सिंपल पास्ट में बनाना है. क्यों बनाना है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक मेमोरेबल डे लिखना है. मेमोरेबल डे अबाउट कि कोई डे है, कोई आपकी पिकनिक है, या कोई आप कहीं घूमने गए हो, या आपका बर्थडे है, कुछ भी हो सकता है, एनीवन एल्स. ओके, उसको आपको डिस्क्राइब करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सेलिब्रेट द डे, यू विल फर्स्ट एंजॉय द डे. आप उस डे को पहले एंजॉय करते हो, उसके बाद ही तो आपको लगता है हाँ मुझे बहुत मजा आया, आई हैव एंजॉयड अ लॉट. तो जब आप उसको एंजॉय कर चुके हो तो फिर हम उसके बारे में लिखेंगे, तो इट मीन्स ये हमारा सिंपल पास्ट हो गया. जो चीज बीत चुकी है उसके बारे में लिखना, इट मीन्स वो सिंपल पास्ट है. और वो दोनों वाले जो हैं वो हमारे क्या है, हैबिचुअल है, बेसिक स्टेटमेंट्स है, तो वो हमारे किस में आएंगे, सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट में. ठीक है, ये वाले टेंस हमारे को यहाँ पर यूज करने हैं, सिंपल प्रेजेंट. ओके, नेक्स्ट है आपकी एक स्टोरी होगी ऑन अ टेस्ट ऑफ फॉर किंग सोलोमन या द मैजिक ऑफ द गोल्डन गूस. ये स्टोरी दोनों होंगी पास्ट टेंस में. याद रखना है स्टोरी हमेशा सिंपल पास्ट टेंस में लिखी जाती है. यहाँ पर आप प्रेजेंट टेंस यूज नहीं कर सकते. ओके क्योंकि स्टोरी जो भी हम एक्सप्लेन करते हैं वो पहले लिखी जा चुकी है. यू आर नॉट राइटिंग ऑन दैट डे. Understood the all questions? Yes. Now you will get good marks in this paper. Yes, for getting good marks, you have to watch this class again, and you have to comment on the both classes. Do you like or not? Okay. Thank you, everyone.